کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین قابل صد تکریم معزز سامعین جی احتشام اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا بے حد شکر و احسان ہے جس ذات باری تعالیٰ کی توفیق سے ہم سبھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہ مقدس جس میں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس ماہ مقدس میں ہمارے محترم راجہ محمد شبیر خان صاحب جو دار فنا سے دار بقا کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کا یہ سفر ان کے لیے آسان فرما کر جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ سب کے روزے عبادات ذکر و فکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذی وقار احباب گرامی القدر، یہ ماہ مقدس نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، صدقات و خیرات کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، اور فلاں آپ عمل کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، حج مقبول کریں گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن روزہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا عظیم راز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہر ایک عمل کے جزا کو، ہر ایک عمل کی عطا کو کا تعین کر دیا گیا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو تاجدار کائنات نے فرمایا لوگو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان راز ہے، جیسے تمہارے روزے سے کوئی دوسرا واقف نہیں ہے ایسے تمہارے اجر سے بھی کائنات میں کوئی واقف نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصیام لی، اور دوسری میں ہے الصوم لی، اور روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، وانا اجزی بھی، میں کسی کے ہاتھ یا کسی حساب سے اس کا اجر نہیں دیتا، بلکہ روزے دار کو براہ راست میں اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں روزے کی حالت میں جب تم ہوتے ہو اس وقت تمہیں کوئی اور چاہے نہ چاہے تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہو کہ اللہ کو تمہاری سانسوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار
जब ज्यादा देर भूखा रहता है और उसके मैदा के अंदर से एक किस्म की हवा हूप निकलती है और फिर वो मुंह में एक मस्त सी बू की सूरत में आती है। बज़ाहिर वो तुम्हारी सांसें शायद तुम्हारे बच्चों को भी अच्छी ना लगे, तेरे माँ और बाप को भी अच्छी ना लगे, लेकिन रोजेदार तेरे मुंह से निकलने वाली वो बू रब्बे कायनात को इतनी पसंद होती है कि जितनी आम बंदू को मुश्क अंबर पसंद नहीं होती है, उतनी तुम्हारे रब को तुम्हारी सांसें पसंद होती है। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई बंदा अल्लाह की रजा की खातिर रोजा रखता है तो रब्बे कायनात लामकाम पर अपने उस बंदे पर फरिश्तों में फख्र करता है कि देखो मेरे बंदे की तरफ देखो, इसके पास खाना भी है, पानी भी है, प्यास भी है, भूख भी है, फिर भी मेरी मोहब्बत में खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा है। रब्बे कायनात जल्ला जलालहू फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों मुझे मेरे इज्जतो जलाल की कसम है, आज इसने मेरी खातिर खाना छोड़ा, भूख छोड़ी, ग़ीबत छोड़ी, झूठ छोड़ा, गुनाहों से बचा रहा, कशा कशा मेरे घर में है, कभी तिलावत कुरान में है, कभी नमाज तरावी में है। तुम फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने आज मेरे लिए दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ दिया है और मैंने इसे कबूल फरमा कर अपने इस बंदे को जन्नत अता कर दी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार को चाहिए कि वो ना फहुश बातें करे, ना वो झूठ बोले, ना वो गीबत करे, ना किसी की इज़ा का बाइस बने, बल्कि रसूल करीम ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करना चाहे तो तुम इनकार कर दो कि मेरे भाई मैं रोजे की हालत में लड़ना नहीं चाहता हूँ। और ताइदार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रोजेदार के बारे में फरमाया था, अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, मन सामना रमदाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा। एक रोजा अगर तुमने ईमान और एहतिसाब के साथ झूठ और गीबत से बचते हुए अल्लाह की रजा के लिए रख लिया तो रब्बे कायनात जल्ला जलालहू तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान 70,000 की मसाफत को दूरियां पैदा फरमा कर तुम्हारी माँ के पेट से जिस तरह तुम पाक पैदा हुए थे, एक रोजा रखने पर रब्बे कायनात इस तरह तुम्हें गुनाहों से पाक कर देता है। जी वकार यह हर लम्हा अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। आइए इस मकाम के लिए तैयारी कीजिए, आइए अपने रब की रहमतों से हिस्सा वसूल कीजिए। ये रहमत आलम की उम्मत पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। अल्लाह करीम हमें सही मानों में रोज़े रखने और तकवा अख्तियार करने और सही मानों में अपने रब की रज़ा के उसूल के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। रात की नमाज तरावी पढ़ने और दिन को रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत और जिक्र फिक्र की तौफीक अता फरमाए। मैं इनके पूरे ख़ानदान के साथ तज़ियत के साथ चूँकि मुक़्तदर उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इंतहाई इख्तिसार के साथ मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। मैं जुमला पसमानदान से इजहार तज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, नबी फरमाए और रमज़ानुल मुबारक की फयूज़ और बरक़ात से मालामाल फरमाए। सामीन किराम, सच्ची बात तो ये है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहिब की गुफ्तगू जो है वो सुनने को जी करता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म भी दिया है, अमल भी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया कायम व दायम रखे और ये बड़ी फ़ख्र वाली बात है कि इन्हें अपने इलाके में खिदमत का मौका मिला है, ये हमारी भी खुशनसीबी है। सामीन इकराम, चूँकि वक्त इतना नहीं है, मैं भी मुख्तसर जो अल्लामा साहब ने बात की है कि अल्लाह की रहमत जो है वो बहाना तलाश करती है और हर लम्हा, चूँकि ये नेकियों का जो मौसम बहार है, बहार इसलिए कहते हैं कि आप देखें कि अभी बहार शुरू हुई है तो कोंपलें फूटना शुरू हो गई हैं, फूल आने शुरू हो गए हैं, हर तरफ हरियाली जो है वो आ रही है, वो ख़ज़ां का मौसम ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो थोड़े अमल की जज़ा और अजर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें एक गलतफहमी है जिसको दूर करना भी ज़रूरी है। हमने अक्सर जो है इज्तिमाआत में और खुसूसन महफ़िल मिलाद में एक ज़िक्र सुना है, खिताब में गुफ्तगू सुनी है, वो ये है कि जिसने एक बार
घर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल कर ली, पूरा साल रहमतों की बारिश होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून देकर भेजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत देकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देकर भेजा है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें जो है ना खोल कर रखी हैं। फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी नहीं करनी, अगर पैरवी करनी है तो अल्लाह और उसके रसूल की करनी है। तो यहाँ ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नमाज का तज़किरा किया है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और वर्कऊ मअर राकीन, जमात के साथ नमाज अदा करो। तो सामीन इकराम, जो बंदा जमात के साथ और नमाज अदा नहीं करता, और एक हदीस मुबारक है कि जिसमें फरमाया कि जान बूझ कर जो एक नमाज छोड़ेगा ना, कुफर की हद को पहुंच जाएगा। तो ये अगर एक तरफ हमें वो रहमतें नज़र आती हैं, लेकिन याद रखें कि ये अजर और जज़ा जो होती है कि एक फ़र्ज अदा किया 70 का अजर मिला, और एक नफल अदा किया फ़र्ज के बराबर मिला, तो इसका मतलब नहीं है कि आपने 70 नमाजें छोड़ी थी वो पूरी हुई हैं, उनमें कमी बेशी करने से कोई किसी को फ़ायदा नहीं होगा। नमाज, हर नमाज जो है, हर नमाज वक्त के अंदर आपने अदा करनी है, जैसा कुरान मजीद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है नमाज अदा करनी है, इसी तरीका से नवाफल पढ़े उसका सवाब होगा। लेकिन कोई नफल रमज़ान में आपने जो पढ़ा उसका फ़र्ज के बराबर तो अजर मिलेगा, लेकिन एक फ़र्ज जो आपने नमाज का छोड़ा उसका बदल नहीं होगा। ये चूँकि एक गलतफहमी है कि हमने एक बार महफिल करवा ली बाकी छुट्टी होगी, छुट्टी नहीं होती, इसलिए कि पूरी ज़िंदगी, पूरा सांस लेने तक जो है अल्लाह के कानून की ताबेदारी करनी है, और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो फिर हमने गफलत की है। तो सामीन किराम, सवाब बहुत होता है, लेकिन ऐसे ही है कि जैसे आप एक अच्छा अमल करते हैं, उस पर अमल करते हैं तो उसका दर्जा बढ़ जाता है, सवाब बढ़ जाता है। लेकिन जो फ़र्ज है, फ़र्ज अदा करने, एक बंदे किसी का कर्ज देना है, वो रमज़ान में 20 लाख खर्च कर दे, लेकिन कर्ज जब तक नहीं देगा वो ख़त्म नहीं ना होगा। इसी तरीके से जो कुछ भी अमल जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, कुर्बानी के हवाला से एक याद रखें, मैं एक जगह दुआ के लिए गया तो मैंने पूछा कि ये बताएं जी कि किस किस के ये हिस्से हैं। उन्होंने 7 गिने, एक हिस्सा बंदा जिंदा था, बाकी सारे जो दुनिया से चले गए थे। तो मैंने कहा ये कुर्बानी तो नहीं आपकी होगी, इसलिए कि मुझे पता है कि आपके घर में हर बंदे के पास जेवर भी है, हर बंदे के पास अलग अलग पैसे हैं, ये सब की तरफ से कुर्बानी होगी, उनकी तरफ से भी करें, लेकिन पहले अपनी करें। तो इस तरह बाज़ मसाइल जो हैं हम दरमियान में उसकी आड़ लेकर छोड़ देते हैं। तो सामीन किराम, याद रखें कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, फिर आपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मिस्ताक ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं इस मौके पर, चूँकि वक्त नहीं है, मैं जो यहाँ तंजीम बनी है और ये बच्चे जो नौजवान काम कर रहे हैं, मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको शाबाश कहता हूँ, क्योंकि ये अच्छा अमल है। गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, आराम से जहाँ जहाँ पार्किंग होगी आप खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको सिला अता करेगा। इस तरह की तंजीमें जो हैं इलाके के लिए, फलाह बहबूद के लिए अच्छा काम करती हैं। मैं इसमें इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। रहमानिर्रहीम। ये पेशरो 2 मुकर्रीन ने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत, अफादियत पर बात की है, और मैं उसी सिलसिले को आगे रखूँगा। क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर बर्पा होगा, तो रमज़ानुल मुबारक और कुरान ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, और रमज़ान अर्ज़ करेगा, या रसूलल्लाह, जिसने मेरी तकरीम की, जिसने मेरी फजीलत को हासिल करने की मकदूर बार कोशिश की, जिसने मेरे दिनों में रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ, या रसूलल्लाह उसकी बख्शिश की आप फ़िक्र न करें, मैं रमज़ान उसकी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा और बख्शवा के मैं दम लूँगा। और इसी तरीके से कुरान की तिलावत करने वाले या रात को नमाज तरावी में मोहब्बत से कुरान सुनने वाले खुश नसीब सुन लें कि कुरान अज़ीम अर्ज़ करेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरी खातिर रात की नींद को कुर्बान किया, प्यार और मोहब्बत से मुझे समात किया, नमाज तरावी में
اہتمام کے ساتھ اپنی مساجد کو آباد کیا۔ یا رسول اللہ، جس نے میری تلاوت کی، مجھے پڑھا، میری ورق گردانی کی، آپ اس کی بخشش کی فکر نہ کریں۔ میں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے بخشوا کے دم لوں گا۔ تو حضرات، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ رمضان اور قرآن جن کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اور الصوم جنہ معلوم یخری کہا، روزہ ڈال ہے جب تک کہ اس میں شگاف نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس میں روزے دار کے سوا اور کوئی داخل نہ ہو پائے گا۔ جو روزے دار ہے اس کو باب الریان سے اندر داخل کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ باقی جو عبادات ہیں ان کا ثواب فرشتوں کے ذریعے عنایت اور عطا ہوگا، لیکن روزے کی یہ ثواب کی جب باری آئے گی تو خالق کائنات کے محبوب حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، جو آپ نے سماعت فرما بھی لی، کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عنایت کروں گا، یا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں رب العالمین خود دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا روزے دار آج سیر اصل طریقے سے میرا دیدار کر لے۔ اللہ کریم یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور روزوں کی شان کے خلاف حرکات و سکنات، جھوٹ، غیبت، بہتان ترازی، کم تولنا، کم ماپنا، دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ ان تمام عیوب سے اللہ ہمیں روزے کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جن نوجوانوں نے خویریٹا اور بالخصوص یونین کونسل بہال میں درست کر لیں، 4 تکبیر نماز جنازہ فلق کفایا سنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر میت کے پیچھے امام صاحب۔ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پروردگار عالم جل جلالہ اپنے بندوں کی حاضری کو
नमाज जनाजा, ज़िक्र, अज़कार, फ़ातिहा, इख़लास, दुरूद शरीफ, कलिमात तय्यबात को अपनी बारगाह लम यज़ल में दर्जा कबूलियत अता फरमा। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़ा पेश करते हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से लेकर जमी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, जमी सहाबा, जमी ताबईन, जमी अहले बैत तहार, जमी मुमिनीन मुमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, ख़ास बिल ख़ास हुज़ूर नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमी उम्मत मरहुमा के अरबा को इसाल फरमा। निगार आलम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के जो उम्मती नेकोकार हैं, दराजात में मज़ीद बुलंदियाँ वुसअतें अता फरमा। गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा कर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को जन्नत में आला मक़ाम नसीब फरमा। बिलख़ुसूस या रब्बुल आलमीन जुमला कलिमात तय्यबात को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा कर हाज़िर मैयत के रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन मरहूम के जुमला सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। परदिगार आलम इनकी कब्र की मनाज़िल आसान फरमा कर जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। मालिक के कायनात दुनिया में बशरी तकाज़े से इनसे जो ख़ता सरज़द हुई, हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद में कमी है या कोताही है, मालिक के कायनात अपनी शान रहीमी और करीमी के तसद्दुक़ से अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महबूबियत के वसीला जलीला से और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तेरी बारगाह में वास्ता और वसीला पेश करते मेरे मालिक मुआफ़ फरमा कर इनकी आने वाली तमाम मनाज़िल को इनके लिए आसान फरमा दे। रब्बे कायनात रमज़ानुल मुबारक की इन पुर नूर घड़ियों और सातों का वास्ता, इस माह मुक़द्दस की अज़मतों का वास्ता पेश करते मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनकर और नकीर के सवालात के बाद इनकी मदद फरमाना। कब्र में ताइदार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, पहचान, मार्फत और शफ़ाअत मुस्तफ़ा नसीब फरमा। रब्बे कायनात कबूलियत की इन घड़ियों में, इस माह मुक़द्दस में हम सब इनके लिए तेरी बारगाह से मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। रब्बे कायनात हम सब की इल्तिजाएं मोहतरम के हक़ में कबूल फरमा कर दुनिया के घर के बदले जन्नत का घर, रोशनियाँ, खुशबुएँ कब्र में नसीब फरमा कर इनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। कब्र से लेकर हशर और हशर से लेकर जन्नत की मनाजिल को आसान फरमा कर जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। परदिगार आलम इनके ख़ानदान लवाहिकीन पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। और रब्बे कायनात ये रहमत बड़ा अशरा है और हम सब तेरी बारगाह में अपने हाथ कशकोल बनाकर करम की भीख मांगते हुए तेरी रहमत का सवाल करते हैं। या अल्लाह हमारे खाली दामन को अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह ये मफ़रत का महीना है, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जहन्नम से आज़ादी का माह मुक़द्दस है, अल्लाह हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह हमें फितनों आजमाइशों से पनाह अता फरमा दे। दुनिया की रंगीनियों ने हमें तुझसे बेगाना कर दिया है। या अल्लाह अपनी बारगाह में रुजू करने, झुकने और अल्लाह करीम आखिरत की तैयारी की तौफीक को हिम्मत अता फरमा। ये मंजिल आने से पहले पहले अल्लाह करीम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात बारे दिगर तमाम हाजरीन के लिए तेरी बारगाह से करम की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह सबको करम की खैरात जोलियाँ भर के नसीब फरमा। और मरहूम के लिए फिर इल्तिजा करते हैं, अल्लाहुम्मा फिरहु वरहमहु वाफ़ु अन्हु वनव्विर क़ब्रहु वस्कनहु फिल फ़िरदौसिल आला बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद। मैं मरा ते जुम्मे वाला रोज होवे, मैं मरा ते जुम्मे वाला रोज होवे, मेरी मंजी ते कलमे दा शोर होवे, मेरी मंजी ते कलमे दा शोर होवे, अख खोला ते नबी मेरे कोल होवे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रब सोने दा जिक्र सोने दा जिक्र पुकार मियां, जिंद पाक नबी तो वार मियां, जिंद पाक नबी तो वार मियां, तेनू गफलत नहीं दरकार मियां, पढ़ो ला इलाहा
الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کیوں اپنا آپ بلایا کیوں اپنا آپ بلایا کیوں دنیا تے دل لایا کیوں دنیا تے دل لایا تینوں اجے بھی ہوش نہ آیا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے رہ نہیں سی سکدے دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں تے جد باغ وچ خزانے وال کھول پنچھی اڈ گئے مار اڈا دیاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یا